صدیوں پرانی بات ہے، کسی ملک پر ایک راجہ حکومت کرتا تھا۔ راجہ کی ایک رانی تھی اور اس رانی کے 2 بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے کا نام رؤف اور چھوٹے بیٹے کا نام بسنت تھا۔ راجہ اور رانی دونوں اپنے بیٹوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ بادشاہ کے محل کے بائیں باغ میں کچھ دنوں سے ایک چڑی اور ایک چڑا ایک چھوٹا سا گھونسلہ بنانے میں مصروف تھے۔ رانی ہر روز ان چڑی اور چڑے کو دیکھتی کہ یہ دونوں کتنی محنت کے ساتھ گھونسلہ بنا رہے ہیں۔ آخر انہوں نے ایک چھوٹا سا گھونسلہ تیار کر لیا اور پھر چڑیا نے اس میں 2 انڈے دے دیے۔ پھر کچھ دن بعد ان انڈوں سے بچے نکل آئے۔ بچے ہر روز بھوک کے لیے چیچی کرتے اور ان کی بھوک کا انتظام چڑی اور چڑا دونوں مل کر کرتے تھے اور رانی ہر روز یہ منظر دیکھا کرتی تھی۔ اتفاق سے ایک روز چڑی مر گئی اور وہی چڑا کسی دوسری چڑیا کو اپنے گھر بیاہ کر لے آیا۔ ستیلی ماں ان بچوں کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی تھی اور ایک دن اس نے جان بوجھ کر چاولوں کے دانے ان بچوں کو کھلا دیے جو ان کے حلق میں پھنس گئے اور وہ دونوں بچے مر گئے۔ چڑیا نے بچوں کی موت کی خبر چڑے سے چھپا لی اور محل کی رانی یہ سب منظر شروع سے دیکھتی ہوئی آ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر محل کی رانی کو بہت دکھ ہوا۔ وہ سوچنے لگی کہ اگر میں مر گئی تو بادشاہ بھی دوسری شادی کر لے گا اور ستیلی ماں میرے بچوں کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کرے گی۔ رانی کو ان بچوں کے مر جانے کا بہت دکھ تھا۔ رانی ایک روز کن بٹی لے کر لیٹ گئی۔ جب راجہ آیا تو راجہ نے اس طرح سے رانی کو لیٹے ہوئے دیکھا تو اس کی وجہ پوچھی۔ راجہ کے پوچھنے پر رانی نے کہا کہ آپ نہ ہی پوچھیں تو اچھا ہے۔ راجہ نے کہا اگر میں نہیں پوچھوں گا تو کون پوچھے گا؟ پھر رانی نے کہا کہ پہلے تو آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ جو میں کہوں گی آپ وہی کریں گے۔ راجہ نے کہا کہ تم جو کہو گی میں تمہاری بات مانوں گا، بتاؤ کیا بات ہے؟ پھر رانی بولی کہ پہلے آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ اگر میں مر گئی تو آپ دوسری شادی نہیں کریں گے۔ راجہ نے یہ سنا تو راجہ کہنے لگا کہ رانی آج یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ پھر رانی نے اس چڑی اور چڑے کا سارا قصہ بادشاہ کو سنایا۔ یہ سن کر بادشاہ کو بھی بہت دکھ ہوا۔ راجہ نے رانی کو سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن رانی نہیں مانی۔ آخر راجہ نے وعدہ کر لیا کہ اگر تم مر گئی تو میں دوسری شادی نہیں کروں گا۔ پھر کچھ ہی روز بعد ایسا ہوا کہ وہ رانی بیمار پڑ گئی اور ایک دن انتقال کر گئی۔ شروع میں تو راجہ کو رانی کی موت کا بہت افسوس ہوا۔ پھر جیسے جیسے دن گزرتے گئے تو راجہ کے دل سے یہ بوجھ ہلکا ہوتا گیا اور وہ اس غم کو بھلانے لگا۔ پھر چالاک وزیروں نے بھی بادشاہ کو گھیر لیا۔ ان وزیروں نے بادشاہ کو بہت مجبور کیا کہ بادشاہ سلامت آپ دوسری شادی کر لیں۔ پہلے تو بادشاہ نے صاف انکار کر دیا کیونکہ وہ رانی سے بہت محبت کرتا تھا۔ پھر آخر کار مجبور ہو کر بادشاہ دوسری شادی کے لیے مان گیا اور پھر بادشاہ نے دوسری شادی کر لی۔ نئی رانی کو جب پتا چلا کہ بادشاہ کے 2 بیٹے ہیں تو اس کے دل میں ان لڑکوں کے لیے نفرت پیدا ہو گئی اور وہ انہیں محل سے نکالنے کے لیے ترکیبیں سوچنے لگی۔ ایک دن وہ رانی بھی کن پٹی لے کر لیٹ گئی۔ جب راجہ محل میں آیا تو اسے یوں لیٹا ہوا دیکھا تو اس کی وجہ پوچھی۔ رانی کہنے لگی کہ مجھے آپ کا بڑا بیٹا رؤف بالکل بھی اچھا نہیں لگتا، یا تو آپ مجھے طلاق دے دو یا پھر رؤف کو ملک سے نکال دو۔ پھر بادشاہ نے رانی سے کہا کہ تم پریشان مت ہو، میں رؤف کو محل سے نکال دیتا ہوں۔ پھر بادشاہ نے ایک تحریر لکھی۔ ایک تختے کے اوپر لکھوایا گیا کہ رؤف کو محل سے نکالا جاتا ہے اور اب رؤف کو محل میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ ہمارا محل چھوڑ کر کسی دوسرے ملک میں جا سکتا ہے۔ جب رؤف اور بسنت باہر سے لوٹے تو انہوں نے محل کے باہر وہ تختی لٹکی ہوئی دیکھی۔ تحریر پڑھ کر رؤف رونے لگا اور کہنے لگا کہ پہلے تو میری ماں نے ساتھ چھوڑ دیا اور اب باپ نے بھی محل سے نکال دیا۔ وہ چھوٹے بھائی سے کہنے لگا کہ بسنت تم محل میں چلے جاؤ، مجھے تو محل میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ بڑے بھائی کی بات سن کر چھوٹا بھائی بولا کہ بادشاہ نے آج تمہیں محل سے نکال دیا ہے اور ہو سکتا ہے کل کو نہ جانے اس کے دل میں کیا خیال آئے، کل کو وہ مجھے بھی نکال دے گا، اس لیے میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ پھر وہ محل چھوڑ کر جنگل کی طرف چل پڑے اور وہ چلتے چلتے بہت دور نکل آئے۔ اب وہ بہت تھک چکے تھے، انہوں نے پھل کھا کر اپنا پیٹ بھر لیا اور اب رات بھی بہت زیادہ ہو چکی تھی۔ چھوٹے بھائی بسنت کو نیند آ رہی تھی۔ بڑا بھائی رؤف بولا کہ بھائی تم سو جاؤ، میں تمہارا پہرا دیتا ہوں۔ بسنت سو گیا اور رؤف پہرا دینے لگا۔ رؤف کے پاس وہ سارے ہتھیار تھے جو وہ شکار کے وقت اپنے ساتھ رکھا کرتا تھا۔ 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا، جنگل کے سارے درخت اور پرندے جانور نظر آ رہے تھے۔ ابھی آدھی رات کا وقت ہوا تھا کہ اسی پیڑ کے نیچے جس کے نیچے وہ آرام کرنے کے لیے بیٹھے تھے، اسی پیڑ کے اوپر ایک طوطا اور ایک طوطی آ کر بیٹھ گئے۔ طوطی کہنے لگی کہ اگر کوئی سن رہا ہے تو سنے، جو کوئی بھی میرا گوشت کھائے گا تو وہ صبح تک بادشاہ بن جائے گا۔ رؤف پہلے تو طوطا اور طوطی کو انسانی زبان میں بات کرتے ہوئے دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ اس کے بعد طوطے نے کہا کہ کوئی سن رہا ہے تو سنے، اگر کوئی میرا گوشت کھائے گا تو وہ بہت ساری مصیبتوں کے بعد بادشاہ بن جائے گا۔ رؤف بڑے غور سے ان دونوں پرندوں کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کے بعد رؤف نے اپنے کمان میں تیر چڑھایا اور اس طرح سے نشانہ لیا کہ دونوں طوطے ایک ہی تیر سے مر گئے۔ رؤف نے جنگل میں سے سوکھی لکڑیاں اکٹھی کی
और आग जलाकर उन दोनों तोता और तोती का गोश्त को भूनने लगा। रऊफ ने तोते का गोश्त खुद खा लिया और तोती का गोश्त अपने भाई बसंत के लिए रख दिया। कुछ देर बाद रऊफ को नींद ने सताया। उसने अपने छोटे भाई बसंत को उठा दिया और फिर तोते का गोश्त उसे खाने के लिए दिया। बसंत ने वो तोते का गोश्त खा लिया और पहरा देने लगा और रऊफ सो गया। बसंत ने दिल ही दिल में सोचा कि मेरे भाई ने कितनी मेहनत के साथ ये शिकार किया और मेरे लिए गोश्त रखा, अब मैं भी इसके लिए कोई अच्छा सा शिकार ढूंढता हूँ। वो ये सोचकर शिकार की तलाश में वहाँ से उठकर चल पड़ा। उसने जंगल में इधर उधर ढूंढना शुरू कर दिया और उधर रऊफ जंगल में अकेला सो रहा था। उसे अकेला सोते हुए देखकर एक आम के दरख्त के ऊपर से एक बहुत बड़ा सांप उतरकर नीचे आया और उसके मुंह के साथ मुंह लगाकर उसका सांस खींच लिया। रऊफ मर गया और सांप वहाँ से चला गया। शिकार की तलाश में बसंत पूरे जंगल में घूमा फिरा लेकिन नाकाम रहा और फिर अपने भाई रऊफ के पास आकर बैठ गया। फिर कुछ ही देर में सुबह हो गई। पूरे जंगल में जानवरों और परिंदों की आवाज गूंजने लगी। छोटे भाई बसंत ने बड़े भाई रऊफ को उठाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं उठा क्योंकि वो मर चुका था। फिर छोटे भाई बसंत ने रोना शुरू कर दिया। फिर उसके दिल में ख्याल आया कि मुझे अपने भाई के कफन दफन के लिए इंतजाम करना चाहिए। वो कफन दफन का इंतजाम करने के लिए किसी दूसरे मुल्क की तरफ चल पड़ा और वो चलते चलते उस मुल्क में पहुंच गया। बसंत जिस शहर में पहुंचा था उस शहर का बादशाह मर चुका था और अक्सर मुल्कों में ये रिवाज हुआ करता था कि जिस मुल्क का बादशाह मर जाता था तो वजीर एक बाज को छोड़ा करते थे और वो बाज जिसके सर पर बैठता था वो बादशाह बन जाता था। खुदा का करना ऐसा हुआ कि वजीरों ने जैसे ही बाज को उड़ाया तो बाज उड़ता हुआ आया और बसंत के सर पर बैठ गया। पीछे पीछे काजी और सारे वजीर भी चलते हुए आ रहे थे। जब उन्होंने बसंत के सर पर बाज को बैठा हुआ देखा तो वो उसके करीब आए और उसके सर पर ताज रख दिया और सारे वजीर, काजी और रियाया हाथ बांधकर खड़े हो गए और कहने लगे कि आज से आप हमारे बादशाह हैं, आप हमारे आका हैं और हम आपका हर हुक्म मानेंगे। जब बसंत को ऐसे अचानक से बादशाही मिली तो वो अपने भाई को भूल गया और उधर रऊफ जिस दरख्त के नीचे मरा पड़ा था वहाँ से एक जोगन और एक जोगी का गुजर हुआ। जब उन्होंने एक नौजवान को देखा तो वो उसके करीब आ गए और उसे उठाने की कोशिश की लेकिन फिर उन्हें पता चला कि यह नौजवान तो मर चुका है। जोगी बहुत हैरान हुआ कि इतना खूबसूरत नौजवान ये कैसे मर गया। फिर जोगन ने बताया कि ये मरा नहीं बल्कि किसी सांप ने इसका सांस खींच लिया है। इसे ठीक करने के लिए कुछ करना चाहिए क्योंकि जोगन को उस पर रहम आ चुका था और जोगन ने अपने शोहर की बहुत मिन्नतें और इसरार किया। फिर आखिरकार जोगी मान गया और कुछ पढ़ने लगा। जोगी के कुछ पढ़ने से वही सांप अपने बिल से निकलकर बाहर आ गया जिसने रऊफ का सांस पिया था और वह सांप उनके करीब आकर कहने लगा कि मेरा जिस्म जल रहा है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। जोगी कहने लगा कि अगर तू अपनी जान की सलामती चाहता है तो इस नौजवान का सांस वापस कर दे जिसका तुमने सांस पिया है। सांप ने अपना मुंह रऊफ के मुंह के साथ लगाया और उसका सांस वापस कर दिया और खुद वहाँ से चला गया। रऊफ दोबारा जिंदा हो गया और उठकर कहने लगा कि मुझे क्या हो गया था। फिर जोगी और जोगन ने उसे बताया कि तुम्हारा सांस एक सांप पी गया था लेकिन अब तुम बिल्कुल ठीक हो। रऊफ ने जब ये सुना तो वो बहुत हैरान हुआ और जोगी और जोगन का शुक्रिया अदा किया और उनके साथ ही चल पड़ा। जोगी और जोगन ने बताया कि हमारा कोई ठिकाना नहीं है, हम आज यहाँ तो कल कहीं और, हम सांपों की तलाश में भटकते रहते हैं लेकिन ये काम बहुत मुश्किल है, हम तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकते, इसलिए तुम कहीं और चले जाओ और हाँ, अगर तुम्हें कभी हमारी जरूरत पड़े तो हमें याद कर लेना, हम यकीनन तुम्हारी मदद के लिए पहुँच जाएंगे। फिर रऊफ का अपने भाई बसंत का ख्याल आया और वो अपने भाई को तलाश करने लगा। तलाश करते करते वो अपने भाई बसंत के शहर में पहुंच गया। शहर के बाहर ऊंची ऊंची इमारतें और दीवारें थी। शहर में दाखिल होने के कई दरवाजे थे जो रात होते ही बंद हो जाते थे और उन दरवाजों के करीब चौकीदार पहरा दिया करते थे। रऊफ ने चौकीदार की बहुत मिन्नतें की लेकिन चौकीदार को कोई असर ना हुआ। चौकीदार ने रऊफ से कहा कि अब दरवाजे बंद हो चुके हैं क्योंकि यह बादशाह का हुक्म है कि रात होते ही शहर के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएं, इसलिए मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता और अब तुम्हें रात शहर के बाहर ही गुजारना पड़ेगी। दरअसल असल हकीकत ये थी कि पिछले कई सालों से एक बहुत बड़ा शेर जंगल के अंदर से निकल कर आता और उस शहर में दाखिल होकर लोगों पर हमला कर देता। उसने कई बेगुनाह लोगों की जान ली थी, इसलिए बादशाह का बहुत सख्त हुक्म था और चौकीदार भी इसी बात के लिए मजबूर था। एक तो बादशाह का हुक्म और दूसरा उस शेर का खौफ। जब चौकीदार ने दरवाजा नहीं खोला तो रऊफ दरवाजे के करीब ही लेट गया और थोड़ी ही देर बाद वही शेर वहाँ पर नमूदार हो गया। रऊफ बहुत बहादुर और समझदार लड़का था। रऊफ के पास उसके सारे हथियार मौजूद थे जिनसे वो शिकार किया करता था। उसके पास तलवार भी थी और तीर भी थे। उसने शेर का डटकर मुकाबला किया और उस शेर को मार डाला। चौकीदार शेर और रऊफ की यह खतरनाक लड़ाई देख रहा था। जब शेर मर गया
तो चौकीदार ने रऊफ को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया और शेर को मारने का सहरा अपने गले में डाल लिया। बादशाह ने खुश होकर उस चौकीदार को वजीर बना दिया कि उसने बहुत बड़ा कारनामा सरअंजाम दिया है। फिर एक दिन एक सौदागर जो अपनी तजारत का एक बहुत बड़ा जहाज लेकर बसंत के मुल्क में दाखिल हुआ, उस सौदागर ने अपना सारा माल वहाँ पर फरोख्त किया और नया माल खरीद लिया। जब वो वापस जाने लगा तो उसका जो बहरी जहाज था वो अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिला। वो सौदागर बहुत परेशान हुआ। फिर उसे एक बुजुर्ग ने बताया कि जब तक वो किसी आदमी का खून इस जहाज को नहीं लगाएगा वो अपनी जगह से नहीं हिलेगा। फिर वो सौदागर बसंत के महल में दाखिल हुआ और बादशाह को कहने लगा कि मुझे एक आदमी का खून चाहिए जिसे मैं समंदर में बहा सकूं। उसके बदले में मैं मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूं। लेकिन बादशाह ने कहा कि मैं ये जुल्म नहीं कर सकता और ये बहुत बड़ा जुल्म है, लेकिन हाँ, अगर कोई दौलत के लालच में खुद अपना सर देना चाहे तो उसे इजाजत है। सौदागर ने बादशाह के कहने पर पूरे शहर में मनादी करा दी कि कोई भी शख्स दौलत के लालच में अपनी जान देना चाहता है तो वो आ जाए, लेकिन इस काम के लिए कोई भी राजी ना हुआ। चौकीदार ने रऊफ को मार डालने का इरादा किया क्योंकि वो जानता था कि अगर किसी को पता चल गया कि शेर को रऊफ ने मारा था तो वो खुद फंस जाएगा। वो सोचने लगा कि क्यों ना रऊफ को इस सौदागर के हवाले कर दिया जाए। फिर आखिरकार उसने रऊफ को उस सौदागर के हवाले कर दिया और सौदागर छुरी तेज करने लगा। रऊफ ने जब सौदागर को छुरी तेज करते हुए देखा तो रऊफ ने पूछा कि तुम ये छुरी तेज क्यों कर रहे हो? फिर सौदागर ने बताया कि तुम्हारी कुर्बानी करने के लिए। जब मैं तुम्हारी कुर्बानी करूंगा और तुम्हारा खून समंदर में बहाऊंगा तो मेरा जहाज चलने लगेगा, क्योंकि मुझे किसी बुजुर्ग ने बताया है कि तुम किसी बेगुनाह आदमी का खून इस समंदर में बहा दो तो तुम्हारा जहाज चलने लगेगा। अगर तुम किसी और तरीके से मेरे जहाज को चला दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और तुम्हें कत्ल नहीं करूंगा। रऊफ ने कहा कि तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारा बहरी जहाज चला देता हूँ। रऊफ ने एक छुरी ली और वो छुरी अपनी उंगली पर मारी जिससे खून निकलने लगा। उसने खून के चंद कतरे बहरी जहाज को लगा दिए और चंद कतरे समंदर में गिरा दिए, जिससे बहरी जहाज अपनी जगह से हिला और चलने लगा। यह देखकर सौदागर बहुत खुश हुआ और उसने रऊफ को कत्ल नहीं किया बल्कि उसे अपना बेटा बना लिया। जब बहरी जहाज दूसरे मुल्क के साहिल पर पहुंचा तो सौदागर और रऊफ ने वो सारा सामान वहां पर फरोख्त किया। एक रोज उस मुल्क की शहजादी और उसकी सहेलियां सौदागर के पास कपड़ा खरीदने के लिए आईं। जब शहजादी ने रऊफ को देखा तो वो दिलो जान से उस पर आशिक हो गई, क्योंकि रऊफ बहुत ही खूबसूरत था। शहजादी ने रऊफ से कहा कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और मुझे तुम अच्छे लगते हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? रऊफ ने जब ये सुना तो फौरन हाँ कर दी। शहजादी फौरन महल में गई और उसे सौदागर के बेटे के बारे में बताया कि वो बहुत ही खूबसूरत है और वो उससे शादी करना चाहती है। बादशाह ने भी फौरन हुक्म दिया कि जाओ सौदागर और उसके बेटे को महल में हाजिर करो। अगले रोज सौदागर रऊफ को लेकर बादशाह के महल में आ गया। बादशाह को भी रऊफ बहुत ही पसंद आया और यूं रऊफ की शादी उस शहजादी से हो गई। सौदागर का सारा तजारती सामान फरोख्त हो चुका था। अब सौदागर ने उस मुल्क से बसंत के मुल्क में जाने का फैसला किया। फिर रऊफ और सौदागर ने बादशाह से अपने मुल्क वापस चले जाने के लिए इजाजत मांगी। शहजादी भी इस सफर पर उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। बादशाह ने सौदागर को बहुत सारे तोहफे तहाइफ दिए जिनसे सौदागर का बहरी जहाज भर गया, लेकिन सौदागर को लालच ने अंधा कर दिया। उसके दिल में लालच आ गया। रऊफ बेचारा 3 दिन तक बहरी जहाज चलाता रहा और फिर चौथे दिन सौदागर खुद जहाज चलाने लगा। 3 दिन मुसलसल जहाज चलाने की वजह से रऊफ बहुत ज्यादा थक चुका था और वो बिस्तर पर लेटते ही सो गया। सौदागर ने मौके को गनीमत जाना और रऊफ को उठाकर समंदर में फेंक दिया, लेकिन खुदा की कुदरत, रऊफ के समंदर में गिरते ही उसे लकड़ी का एक बहुत बड़ा तख्ता मिल गया। रऊफ ने उसे मजबूती से पकड़ लिया, जिसके बहते हुए वो कई दिनों बाद साहिल पर जा लगा। रऊफ बेचारा कई दिन से भूखा प्यासा था, इसीलिए वो साहिल पर पहुंचते ही बेहोश हो गया और उसी साहिल के किनारे पर एक धोबी और धोबन कपड़े धो रहे थे। जब उन्होंने एक नौजवान को बेहोश पड़े हुए देखा तो वो उसे उठाकर अपने घर ले गए। उनके घर पहुंचकर रऊफ को होश आ गया। फिर धोबी और धोबन ने गरम गरम दूध रऊफ को पिलाया, ताज़ा फल खिलाए तो रऊफ बिल्कुल ठीक हो गया। धोबी के यहाँ कोई औलाद नहीं थी, इसलिए धोबी ने रऊफ को अपने घर में रख लिया और उसे अपना बेटा बना लिया। उधर जब सौदागर को यकीन हो गया कि रऊफ डूबकर मर चुका होगा तो उसने बहरी जहाज में जाकर शहजादी को बताया। शहजादी ने रोना धोना शुरू कर दिया। फिर सौदागर बोला कि जो होना था वो तो हो चुका, अब रोने से क्या फायदा, तुम मुझसे शादी कर लो। शहजादी कहने लगी कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, तुम मेरे शहजादे के कातिल हो, मैं तुमसे हरगिज शादी नहीं करूंगी। भला मैं एक कातिल से कैसे शादी कर लूं, और ये कैसे मुमकिन है कि कोई बहू अपने ससुर से शादी कर ले। सौदागर कहने लगा कि वो मेरा मुंह बोला बेटा था, मैं उसका हकीकी बाप नहीं था, इसलिए मैं तुम्हारा ससुर भी नहीं हूँ, इसलिए तुम मुझसे शादी कर सकती हो। सौदागर ने शहजादी को मनाने के लिए बहुत कोशिश की और बहुत ही मिन्नतें की,
लेकिन शहजादी की जुबान पर इनकार के सिवा कुछ न था और शहजादी कई दिन भूखी प्यासी उसी जहाज में सफर करती रही और रोती रही। फिर कुछ दिन गुजरने के बाद जब वो बहरी जहाज साहिल के किनारे पर पहुंचा तो ये खबर धोबी के घर तक पहुंची। जब रऊफ को बहरी जहाज की खबर मिली तो उसने धोबी को सौदागर के पास भेजा ताकि वो कपड़े धोने के बहाने कुछ दिन उसके पास रहे और उसे शहजादी की खबर मिल सके। फिर धोबन कपड़े मांगने के लिए सौदागर के पास गई। सौदागर ने अपने पुराने कपड़े धोबन को दे दिए और फिर शहजादी को लेकर धोबन के पास गया ताकि शहजादी का दिल बहल जाए और शहजादी से कहा कि पुराने कपड़े उतार दो और नए कपड़े पहन लो। और फिर सौदागर खुद उस कमरे से निकलकर दूसरी तरफ चला गया। फिर धोबन ने शहजादी से कहा कि तुम परेशान मत हो, मैं जानती हूँ कि तुम परेशान किस लिए हो। तुम्हारा शोहर बिल्कुल जिंदा है और वो हमारे घर में बिल्कुल ठीक है और उसका नाम रऊफ है। शहजादी ने जब रऊफ का नाम सुना तो उसे यकीन हो गया और वो बहुत खुश हुई। फिर धोबन ने बताया कि उसी ने तुम्हारा पता चलाने के लिए मुझे यहाँ पर भेजा है। फिर धोबन ने शहजादी को कहा कि अगर आज तुम्हें सौदागर शादी के लिए कहे तो तुम उसे कहना कि मैं तुमसे शादी जरूर करूंगी, लेकिन उससे पहले तुम मुझे रऊफ और बसंत के बारे में बताओ। ये बात सुनकर शहजादी बहुत खुश हुई और कहने लगी कि मैं आपकी बात पर अमल जरूर करूंगी। फिर धोबन कहने लगी कि बेटी अब मैं अपने घर चलती हूँ, मुझे बहुत देर हो रही है। धोबन ने शहजादी के पुराने कपड़े उठाए और अपने घर वापस आ गई और घर आकर रऊफ को सारा किस्सा सुनाया और बताया कि वो सौदागर किस तरह से शहजादी को शादी के लिए हर रोज मजबूर करता है। फिर अगले दिन जब सौदागर ने शहजादी को शादी के लिए कहा, शहजादी कहने लगी कि मैं तुमसे शादी कर लूंगी, लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त है। सौदागर ने ये सुना तो सौदागर बहुत खुश हो गया और कहने लगा कि मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। और सौदागर ने दिल में सोचा कि धोबन से मिलने के बाद इसका दिल बहल गया है और इसकी तबीयत भी ठीक हो गई है। फिर शहजादी कहने लगी कि तुम मुझे बसंत और रऊफ का किस्सा सुनाओ। यह सुनकर सौदागर कहने लगा कि मुझे इस कहानी के बारे में नहीं पता, लेकिन मैं किसी से पूछकर तुम्हें सुना सकता हूँ। फिर शहजादी बोली कि ये कहानी तुम सुनाओ या कोई और सुनाए, लेकिन मुझे ये कहानी सुननी है। फिर सौदागर उस कहानी की तलाश में वहाँ से निकला और कई बूढ़े बूढ़े आदमियों के पास गया। फिर सौदागर ढूंढते ढूंढते बादशाह बसंत के महल में पहुँच गया और बसंत को कहने लगा कि मुझे रऊफ और बसंत की कहानी सुननी है, क्योंकि मेरी बीवी बहुत परेशान है और वो मुझे हर रोज कहती है कि मैं रऊफ और बसंत की कहानी सुनना चाहती हूँ। जब बादशाह ने ये दोनों नाम सुने तो उसे अपना भाई रऊफ याद आ गया जो उसके ख्याल से मर चुका था। बादशाह ने जब ये बात सुनी तो उसके दिल में भी बसंत और रऊफ की कहानी सुनने का शौक पैदा हो गया और बादशाह ने पूरे शहर में ये मनादी करा दी कि जो कोई भी महल में आकर रऊफ और बसंत की कहानी सुनाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। अगले दिन धोबन रऊफ के कहने पर बादशाह के महल में दाखिल हुई और कहने लगी कि बादशाह सलामत, मेरी बेटी ये कहानी सुना सकती है। जब बादशाह ने ये सुना तो वो बहुत खुश हुआ। फिर बादशाह ने कहा कि तुम्हारी बेटी को इजाजत है कि वो महल में आए और हमें कहानी सुनाए। उसके बाद बादशाह ने फिर से पूरे शहर में मनादी करा दी कि जो कोई भी रऊफ और बसंत की कहानी सुनने का ख्वाहिशमंद है तो वो कल बादशाह के महल में हाजिर हो जाए। बादशाह बसंत ने ये रात बहुत बेचैनी के साथ गुजारी। फिर अगले रोज बादशाह और उसके वजीर जो बेचैनी से कहानी सुनने के लिए बेताब थे वो दरबार में हाजिर हुए। सौदागर भी ये कहानी सुनने के लिए बहुत बेताब था और वो चाहता था कि जल्द से जल्द उसकी शादी शहजादी से हो जाए। वो शहजादी को बुर्का पहनाकर बादशाह के महल में ले आया। धोबन की कोई बेटी नहीं थी, इसलिए रऊफ ने बुर्का पहना और बादशाह के महल में दाखिल हो गया। फिर धोबन की बेटी यानी रऊफ ने बादशाह से मुखातिब होकर कहा कि बादशाह सलामत, मेरी एक शर्त है। बादशाह कहने लगा कि क्या शर्त है, अपनी शर्त बताओ। फिर रऊफ ने कहा कि बादशाह सलामत, मैं अपनी ये कहानी थोड़ी थोड़ी करके कई दिन में सुनाऊंगी, और दूसरी बात, अगर मेरी कहानी सुनाते वक्त कोई भी आदमी बोला तो आप उसे सजाए मौत देंगे। अगर आपको मेरी शर्तें मंजूर हैं तो मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। बादशाह ने धोबन की बेटी यानी रऊफ की सारी शर्तें मंजूर कर लीं और फिर रऊफ ने कहानी सुनाना शुरू किया। जब रऊफ कहानी के उस हिस्से पर पहुंची जहां सांप के डसने पर वो मर जाता है तो वहां पर रऊफ ने कहा कि बस आगे की कहानी मैं कल सुनाऊंगी। यह सुनकर सब लोग अपने अपने घरों में चले गए। तो बादशाह ने भी अपने जहन में यह ख्याल लाना शुरू कर दिया और सोचने लगा कि वाकई ही सब कुछ ऐसे ही हुआ था। अगले रोज फिर धोबन की बेटी और सारे लोग वहां पर जमा हुए। फिर धोबन की बेटी ने कहानी सुनाने के लिए इजाजत चाही। बादशाह ने इजाजत दे दी और फिर धोबन की बेटी कहानी सुनाते सुनाते वहां तक पहुंची जहां पर रऊफ शहर में दाखिल हो रहा था और शहर का चौकीदार दरवाजा नहीं खोल रहा था। और वहां पर रऊफ ने शेर का मुकाबला करके शेर को मार डाला था और चौकीदार ने रऊफ को कैद में डालकर शेर मारने का नाम अपने सर पर ले लिया। यह सुनकर वो चौकीदार जो वजीर बन चुका था वो बोल उठा कि बादशाह सलामत, ये कहानी झूठी है,
शेर को तो मैंने मारा था और ये धोबी की बेटी तो कह रही है कि रऊफ ने मारा था। अब वो चौकीदार जो कहानी सुनाने के दौरान बोल पड़ा था। बादशाह के कहने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उसे 100 कोड़े लगाए गए। जब उसे 100 कोड़े लगे तो वो मान गया कि रऊफ ने ही शेर को मारा था और मैंने उसे गिरफ्तार करके कैद में डाल दिया था। ये कहानी बिल्कुल सच्ची है। धोबन की बेटी यानी रऊफ ने कहा कि बाकी की कहानी मैं कल सुनाऊंगी। फिर अगले रोज सारे लोग ये कहानी सुनने के लिए जमा हो गए और रऊफ ने बादशाह के हुक्म पर कहानी सुनाना शुरू कर दी। जब कहानी सुनाते सुनाते वो कहानी के उस हिस्से पर पहुंचा जहां सौदागर ने रऊफ को उठाकर समंदर में फेंक दिया था और शहजादी को शादी के लिए मजबूर करने लगा था। यह सुनकर वो सौदागर कांपने लगा और जल्दी से बोल उठा कि बादशाह सलामत, ये बात बिल्कुल झूठी है, मैंने रऊफ को समंदर में नहीं फेंका था। फिर बादशाह ने हुक्म दिया कि इस सौदागर को गिरफ्तार कर लो। सिपाहियों ने सौदागर को गिरफ्तार कर लिया और बादशाह के कहने पर उसे 100 कोड़े लगाए। जब सौदागर को 100 कोड़े लगे तो वो भी मान गया कि उसने ही रऊफ को उठाकर समंदर में डाल दिया था और ये जो मेरे साथ बुरखा पहनकर आई है यही उस रऊफ की बीवी है। फिर रऊफ की बीवी ने यानी शहजादी ने भी अपना बुरखा उठाकर कहा कि मैं ही रऊफ की बीवी हूँ। फिर बादशाह बसंत धोबी की बेटी से मुखातिब होकर बोला, आगे बताओ कि आगे क्या हुआ और तुम ये कहानी कैसे जानती हो जो बिल्कुल सच्ची है। जरा तुम तो अपना बुरखा उठाओ, मैं देखूं तो सही कि तुम कौन हो। बादशाह के कहने पर जब रऊफ ने अपना बुरखा हटाया तो बसंत और सारी रियायत देखकर हैरान रह गई और उसने कहा कि मैं ही रऊफ हूँ। फिर बादशाह ने हुक्म दिया कि सौदागर को कैद में डाल दो और इसे 100 कोड़े और लगाओ। फिर बादशाह बसंत ने सबका मुखातिब होकर बताया कि मैं ही बसंत हूँ। फिर बादशाह और रऊफ एक दूसरे के गले लगकर खूब रोए क्योंकि वो बहुत अरसे के बाद एक दूसरे से मिले थे। और फिर बादशाह बसंत ने अपने भाई रऊफ और उसकी बीवी को अपने महल में रख लिया और वो उसके महल में ही रहने लगे। और फिर रऊफ ने अपने बाप को याद करना शुरू कर दिया। कुछ ही रोज बाद वो जोगन और जोगी बादशाह के महल में पहुंच गए और उन्होंने रऊफ को बताया कि तुम्हारा बाप फुला मुल्क में रहता है और वो उस मुल्क का बादशाह है और वो बहुत बूढ़ा हो चुका है और वो तुम्हें बहुत याद करता रहता है। जब रऊफ और बसंत ने अपने बाप के बारे में सुना तो वो उन्हें याद करके खूब रोए और वो वहाँ जाने के लिए तैयार हो गए। बसंत रऊफ और रऊफ की बीवी जोगन और जोगी के साथ अपने बाप के मुल्क की तरफ रवाना हो गए। बादशाह अपने दोनों बेटों से मिलकर बहुत खुश हुआ। फिर कुछ दिनों के बाद बादशाह मर गया और बादशाहत रऊफ को मिल गई। रऊफ उस मुल्क का बादशाह बन गया और बसंत अपने मुल्क वापस चला गया जिस मुल्क का वो पहले से ही बादशाह था। इस तरह से एक मुल्क का बादशाह रऊफ बन गया और दूसरे मुल्क का बादशाह बसंत बन गया और इस तरह वो दोनों ही बादशाह बन गए। रऊफ बहुत सारी मुसीबतें उठाने के बाद बादशाह बना जबकि बसंत बगैर किसी मुश्किल के बादशाह बन गया। और यूं उस तोते और तोते की बात सच्ची हो गई। उनकी सौतेली माँ भी मर चुकी थी और अब वो दोनों अपने अपने मुल्कों पर बादशाहत करने लगे। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।